Hello students and welcome to our YouTube channel Launchpad Education Punjab. I hope so ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਏਜ। ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਜ ਟੌਪਿਕ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ the sum of age of mother and daughter is 50 years। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਬਾਈ ਲਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਤੇ ਜਾਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਮਦਰ ਬੀ x ਜਾਂ ਲੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਡਾਟਰ ਬੀ y। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ x ਐਂਡ y ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। अगर मदर पूछी है मैं M यूज करूंगी, अगर डॉटर पूछी है D यूज करूंगी। सपोज करो फादर पूछ लिया आई विल यूज F। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ the sum of age of mother and daughter is 50 years। ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ mother plus daughter is 50 years। फर्स्ट लाइन में रीड की फर्स्ट इक्वेशन साडी आ गई। सैकेंड विच की कहंदे हैं 5 years ago the mother's age was 7 times the age of daughter। 5 years ago दा मीन्स 5 years पहला, पहला मीन्स पास्ट। जदों असी पास्ट की गल करनी है हमेशा आपां सबट्रैक्ट करना प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज विचों असी हमेशा सबट्रैक्ट करांगे। प्रेजेंट एज मदर दी किन्नी है M, किन्ने ईयर्स पहला 5 ईयर्स पहला। डॉटर दी एज किन्नी है D, किन्ने साल पहला आपां सबट्रैक्ट करना है 5 ईयर्स। ए 5 साल पहला मदर दी एज, ए डॉटर दी एज 5 साल पहला। M minus 5 D minus 5 की कहंदा है मदर्स एज वाज 7 times the age of daughter। मदर दी एज 7 times है किदे नालों, डॉटर दी एज नालों। स्टूडेंट्स समझ आया, मदर दी एज 5 साल पहला 7 टाइम्स है डॉटर दी एज 5 साल पहला जिन्नी सी। इत्थों की आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हुण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इत्थों मदर दी वैल्यू कढ लो की है 50 माइनस D। तो मदर दी वैल्यू कितनी आ रही है M minus 5 7D minus 35। मैं 7 नू की मल्टीप्लाई करता तो ब्रैकेट ओपन करती 7D minus 35 माइनस 5 इधरों उधर जाके की हो जाएगा प्लस 5। 7D minus 35 प्लस 5 माइनस 30। ये आ गई मदर दी एज सेकंड इक्वेशन चो। आ M ते आ M इक्वल ऑपरेट कर दो 50 माइनस D आ क्या है 7D माइनस 30। D एक साइड लै गए तो कॉन्स्टेंट्स में एक साइड लै गई 50 प्लस 30 आ माइनस 30 उधर जाके हो जाएगा प्लस 30 आ माइनस D उधर जाके हो जाएगा प्लस D 7D प्लस D एक ही हो जाएगा 8D। इत्थे की हो जाएगा 50 प्लस 30 80। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ईयर्स। ओके,
हुण की पूछा सीगा फाइंड द एज ऑफ मदर एंड डॉटर। डॉटर दी एज कितनी आ गई 10 years 10 no 10 no 10 years 10 no ऑप्शन नंबर सी पार्ट। हुण सपोज करो दो ऑप्शन विच हुंदा 10 10 ते कोई भी इस इक्वेशन विच या इस इक्वेशन विच डी दी वैल्यू पुट करो तुहानू एम दी वैल्यू आ जाएगी। मैं इस इक्वेशन दे विच पुट कर रही हां m is equal to 50 minus d 50 minus 10 मदर दी एज की आ जाएगी 40 years। क्लियर है स्टूडेंट्स। दो इक्वेशंस मैं जनरेट कीतियां ते ओदे रिस्पेक्टिव ਅਸੀਂ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सोहम इज 4 times as old as his son। पहले क्वेश्चन विच मदर ते डॉटर बारे पूछा, सेकंड क्वेश्चन विच की उन्हें पूछा फादर ते सन बारे। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो, मैंने दसो की आ रहा है। फर्स्ट लाइन रीड करो, मैंने दसो की आ रहा है, इक्वेशन की बन रही है। मिस्टर सोहम की ने फादर, मैं एफ डोनेट कर लूंगी, ते इत्थे की है सन, मैं एस डोनेट करूंगी। ठीक है, फादर इज 4 times as old as his son। Father is 4 times as old as his son। 4 year hence हो अच्छा हुण आ गया वर्ड hence। हुण hence मैनू दसो पास दा वर्ड है कि फ्यूचर दा। hence वर्ड पास दा कि फ्यूचर दा। hence वर्ड स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, hence एक फ्यूचर दा वर्ड है ते जदों फ्यूचर दा वर्ड आ जाए असीं हमेशा ऐड करना है प्रेजेंट एज विच। ओके, 4 year hence the sum of their ages will be 43 years। 4 years hence पहले करो, father plus 4 son plus 4। 4 years hence कर ले, ए father दी 4 साल बाद एज, ए son दी 4 साल बाद एज। sum of their ages will be 43। हुण करो sum will be 43। ओके स्टूडेंट्स, हुण father दी एज कितनी है 4s। 4s plus 4 plus s plus 4 is equal to 43। 4s plus s 5s 43। 4 plus 4 उधर जाके हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4 plus 4 plus 8 plus 8 उधर जाके की हो जाएगा -8। 43 minus 8 35 5s s is equal to s मल्टीप्लीकेशन है उधर जाके हो जाएगा डिवीजन। 35 डिवाइडेड बाय 5 5 7 जा 35। सन दी एज क्या आ जाएगी 7 years। आई पूछी हुई है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन s है ते s दी वैल्यू ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर ली 7 years। लाइन रीड करो, इक्वेशन बनाओ, सेकंड लाइन रीड करो, इक्वेशन बनाओ, उन्होंने सॉल्व करो, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਸਮ ਆਫ ਏजेस ਆਫ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਇਜ਼ 45 years। ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ f ਤੇ ਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ s। पहली इक्वेशन में दोस्तों की बन रही है फादर प्लस सन इज 45 years। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये है 5 years ago। ago मीन्स पास्ट, पास्ट मीन्स प्रेजेंट एज विचों आपां की करांगे सबट्रैक्ट। प्रेजेंट एज विचों सबट्रैक्ट करो 5 सन माइनस 5। ठीक है, the product of the ages was, product ले लो, product means multiply, was 4 times the father's age at that time, was equal to 4 times the age of father at that time। at that time means उस time ते father दी age कितनी सी f minus s 4 times करता, ये product ले लिया आपां ते आ बन गई अपनी second equation, ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। मैनू कमेंट सैक्शन दे विच फादर ते सन दी एज कैलकुलेट करके दसो। कुछ नहीं करना,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫਾਦਰ ਪਲਸ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 45 ਇਅਰਸ। ਫਾਦਰ ਪਲਸ ਸਨ ਦੀ ਏਜ 45 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 5 9 ਇਹਦਾ ਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ 35। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ 45, ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ 35 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ 45 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 5 3 + 4 5 ਯੈਸ 3 + 1 4 ਯੈਸ। मतलब आंसर की होएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी विचों एक होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रीवियस ईयर च इक्वेशंस बना के दसदियां ने, ਤੁਸੀਂ सिर्फ सॉल्व करके ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ आंसर कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। the present age of, this is very important question, ठीक है मैं दसदी हां क्यों इंपॉर्टेंट है। The present age of Aradhana and Adrika is in the ratio 3:4। मतलब आराधना ਦੀ वैल्यू 3x है ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਦਰਿਕਾ ਦੀ वैल्यू 4x है। प्रेजेंट एज ਜਦੋਂ मैं रेशो ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, अगर 3:4 ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ 3 ਇਅਰਸ ਏਜ ਹੈ ਇਹਦੀ 4 ਇਅਰਸ ਏਜ ਹੈ। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3:4। 5 ਇਅਰਸ बैक, 5 इयर्स बैक दसो प्लस करांगे कि माइनस करांगे, दसो स्टूडेंट्स। 5 इयर्स बैक विच असीं प्लस करांगे कि माइनस करांगे, माइनस करांगे। बैक की हैगा पास्ट, पास्ट की आपां करांगे सबट्रैक्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एजेस वाज, मतलब 5 साल पहला उन्हां दी रेशियो कितनी सी 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना, आराधना दी की है 3x उन्हें फाइंड आउट करन नु किया, 3x की वैल्यू फाइंड आउट करन नु किया। फर्स्ट की मेथड है इक्वेशंस बनाओ सॉल्व करो। सेकंड मेथड देखो की है लॉन्च पैड ट्रिक किवें करांगी मैं। दोनों दे नेम इनिशियल्स ए ने इसलिए मैं आराधना नु A1 अज्यूम किया ते आद्रिका नु मैं A2 अज्यूम किया। इनू मैं A1 लिख लिया, इनू मैं A2 लिख लिया, ठीक है। जदों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तानू दो रेशोज गिवन होण, जदों तानू दो रेशोज गिवन होण ते असीं आ मैथड दे नाल करना है। अगर तो कोई रेशो नहीं गिवन या सिंपल एक रेशो गिवन है तो सिंपल मैथड दे नाल कर लो। अगर जदों तानू दो रेशोज मिल गई तो आपां ए वाला मैथड फॉलो करांगे, ठीक है। प्रेजेंट एज नूं आपां लिख लांगे 0 क्योंकि असीं हुण दी गल कर रहे हां। कितनी दिती हुई है 3 4। उस तो बाद 5 इयर्स बैक, 5 इयर्स बैक नूं असीं लिख लांगे -5। ओहदी रेशो कितनी दिती हुई है 2 ते 3। कुछ नहीं करना, जदों तुहानू दो रेशो दे जाण, एक आ रेशो मिल गई एक आ रेशो मिल गई, टेबल बनाओ, फर्स्ट पर्सन लिखो सेकंड पर्सन लिखो, इधरली साइड ईयर्स लिख लो कि प्रेजेंट एज कितनी है या 5 साल पहला कितनी है। कई क्वेश्चन चाहूगा 5 साल पहला या 5 साल बाद दी एज, ठीक है। वो ध्यान नाल लिखनी है आपां प्रेजेंट एज ते ए पास्ट दी एज लिख ली आपां। जदों सानू दो रेशोज दे देण ते असीं हमेशा टेबल फॉर्म करके करना। प्रेजेंट नूं आपां 0 लिखना, पास्ट नूं आपां माइनस नाल डोनेट करना। अगर सपोज कोई क्वेश्चन च आ जाए फ्यूचर दी गल जां 5 इयर्स हैंस ते असीं ओनू +5 दे नाल डोनेट करके लिखना। क्लीयर है स्टूडेंट, सानू टेबल बना लिया। हुण मैनूं दसो ये दोनों दे विच डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 ईयर दा डिफरेंस है, इहदे विचों भी 1 ईयर दा डिफरेंस है रेशो दे विच, ठीक है। रेशो दे विच 1 ईयर दा डिफरेंस है पर ईयर्स दे विच कितना डिफरेंस है 5 ईयर्स दा। मतलब 1 दी वैल्यू आ गई 5, मैं यूनिटरी मैथड तुहानू रेशो च भी करवाया सीगा। 1 दी वैल्यू आ गई 5 ते सानू किहदी फाइंड आउट करन नू दित्ती हुई है आराधना दी। आराधना दी कितनी है 3। अगर 1 दी 5 है तो 3 दी कितनी होएगी 5 3 15। आंसर आ गया 15 ईयर्स, ऑप्शन ए पार्ट, ठीक है। सिंपली इन्ना ही सोल्यूशन है ओदा। अगर इक्वेशन मैथड ना करोगे, रेशो विच कभी भी इक्वेशन मैथड ना अपनाइए, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाना है, कॉम्प्लीकेटेड हो जाना। इन्ना को टेबल बनाओ, इधर ईयर लिखो इधर पर्सन लिख लो,
जिन्ना डिफरेंस आ रहा है उन्होंने ईयर दे नाल कंपेयर करके आंसर आ जाना तुहाडा विद इन 1 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप दा। देखो, अरुण इज 2 years older than भरत who is twice as old as शरद। हुण इत्थे किन्ने बंदे दिते हुए हैं? अरुण, भरत एंड शरद। अरुण, भरत ते शरद। ठीक है, उन्हें 3 बंदे देते। अरुण की है 2 years older than भरत। ओल्डर मीन्स बड़ा। अरुण की है 2 साल वड्डा किदे नालों? भरत नालों। अगर भरत की आपां एज 20 अज्यूम कीती है ते अरुण दी कितनी होएगी? 2 साल वड्डा किदे नालों? भरत नालों। ठीक है, हु इज हुण की है? भरत इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शरद। भरत की है ट्वाइस, हुण शरद दी आपां सी अज्यूम कीती हुई है, भरत दी एज की कह रहे हैं? ट्वाइस एज ओल्ड एज शरद। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखियो, 2 years older ते ट्वाइस दा मतलब हुंदा है मल्टीप्लाई, 2 years older दा मतलब हुंदा है, या 2 years younger दा मतलब हुंदा है एडिशन या सबट्रैक्शन। ठीक है, हुण 2b ते b दी वैल्यू कितनी है? कल्ली b दी वैल्यू कितनी है? 2c। ठीक है, a दी वैल्यू कितनी आ गई? 2 + 2c, b दी वैल्यू आ गई 2c ते c दी वैल्यू c है। If the total of the ages of Arun, Bharat and Charat is 27, हुण की कहंदा है? ये तिन्ना दी एज नो प्लस कर दो। 2 + 2c + 2c + c कितनी दित्ती हुई है? 27 years। Then how old is Bharat? भरत दी की है 2c वैल्यू दी असी फाइंड आउट करनी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सानू दूजी इक्वेशन की लोड़ ही नहीं पी। क्यों नहीं पी? क्योंकि उन्हें ए बी सी दे सानू रिलेशन ही देता डायरेक्टली। की आएगा इथों? 2c + c 2 4 5c +2 उधर जाके की हो जाएगा? -2 5c, c उधर लेके जाओ 5, इथे मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके की हो जाएगा? डिवाइड। 5 5 25। सी दी वैल्यू की आ गई 5, बी दी वैल्यू की होगी? 5 2 10 ते 2 साल वड्डा है की हो जाएगी 12 years। अरुण दी एज अरुण दी एज आ गई 12 years, भरत दी आ गई 10 years से शरत दी आ गई 5 years। उन्हें किदी कड्डण नु क्या गया सी? भरत दी है 10 years। ऑप्शन ए पार्ट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। हाँ जी, मार्क दिस क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ 4 times as old as daughter। ਫਾਦਰ ਤੇ ਡਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਡਾਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4:1। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਪਾर्ट है तो ਕੀ ਆ? 4 times। ठीक है, फर्स्ट रेशियो आ गई साडी 4:1। इफ 5 years ago मीन्स आपां की करांगे? माइनस the age of father was 7 times the age of daughter। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? father and daughter। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ? years। yes, ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ years। ਇੱਕ present year ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਦੀ 4 ਹੈ ਤੇ ਡਾਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? age of father is 7 times the age of daughter। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखियो। टेबल बना लिया तुसी रेशो दा। ठीक है, हुण मैनू दसो इहदे विच डिफरेंस कितना आ रहा ते इहदे विच डिफरेंस कितना आ रहा? इहदे विच तां 0 आ रहा, इहदे विच कितना आ रहा?
3 3 is 3 equal to 0 no ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 minus 1 6 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 minus 1 3 ਆ 6 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 4 1 7 1 ਰੇਸ਼ੋ डिफरेंस इक्वल नहीं हैगा ये दोनों का रेशियो लो आ दोनों की रेशियो लो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 6 ਇਹਦਾ आ रहा 3 ਇਹਦੇ डिफरेंस ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹਦੇ डिफरेंस ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 6 4 ਦਾ 24 6 1 ਦਾ 6 7 3 ਦਾ 21 3 1 ਦਾ 3 ਹੁਣ ਦੇਖੋ डिफरेंस सेम आ रहा इधर भी 3 आ रहा इधर भी 3 आ रहा ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੋ ਈਅਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 0 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ -5 ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 3 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 0 5 5 ਇਅਰਸ ਦਾ मतलब 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 5/3 ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਫਾਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 24 यूनिटरी मेथड में लाया 3 8 जा 24 8 5 जा 40 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ डिफरेंस सेम हो जान दो रेशियोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ यूनिटरी मेथड लाना है अगर डिफरेंस नहीं सेम ਇਹਦਾ डिफरेंस लो ਇਹਦਾ डिफरेंस लो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के और डिफरेंस सेम आ जाएगा क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज इट कॉन्सेप्ट छड़ के ना जाइए एग्जाम दे विच नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी इस क्वेश्चन विच की कहंदा है आफ्टर 5 years the age of father will be thrice the age of the son हाँ जी ये भी की है डबल रेशियो दा क्वेश्चन है पहला मेथड की है टेबल बनाओ फादर ते सन नहीं पूछा होया इधर मैं की लिखूंगी ईयर्स ठीक है 5 year after 5 years means +5 the age of father will be thrice the age of son ठीक है whereas 5 years ago means -5 he was 7 times as old as his son रेशियो कितनी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 7 ਤੇ 1 ठीक है स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिफरेंस चेक करो सेम है 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 4 सेम नहीं हैगा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ डिफरेंस सेम नहीं ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ डिफरेंस ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ डिफरेंस है 6 ਇਹਦੋਂ ਕਿੰਨਾ डिफरेंस ਆ ਰਿਹਾ 2 ਆ 2 ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ 6 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6 3 जा 18 6 1 जा 6 7 2 जा 14 2 1 जा 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ डिफरेंस इक्वल आ रहा है 4 4 यस डिफरेंस इज इक्वल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ यूनिटरी मेथड लगावांगे 4 years in ratio is equal to अच्छा मैंने years दसो कितने होंगे 5 years क्यों 5 years +5 -5 ਹੁਣ सपोज करो मेरी एज 20 है 5 साल पहला मेरी एज कितनी होएगी 15 5 साल बाद मेरी एज कितनी होएगी 25 डिफरेंस कितना आ रहा है 10 years का ठीक है ईयर्स का डिफरेंस 5 नहीं 10 years हैगा एच गलती इत्थे बच्चा गलती कर सकता उन्हें 5 अज्यूम कर लेना नो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 10 अज्यूम करना 10 लेना 10 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 10/4 ਤੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਆ ਲੈਣਾ
ठीक है। हुण दसो की लवां, 5 साल पहला दी ले लैनी मैं 14, ठीक है। 2 7 2 ना अगेन कटिया गया, 7 5 जा 35, बट 35 इज नॉट एन आंसर। क्यों नहीं आंसर दसो मैनू? 35 इज नॉट एन आंसर, क्यों? क्योंकि वो 5 साल पहला दी एज है। 5 साल बाद कितनी एज होएगी? +5 इज इक्वल टू 40 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ईजी मैथड, सिंपल मैथड की है, बस एक समझण दी लोड़ है कि आपां रेशो सेम करनी है, यूनिटरी मैथड लगाना है ते +5। अच्छा सपोज करो मैं 18 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंदी, 4 10 दे इक्वल है, 1 की इक्वल होगा 10/4 ते 18, 9 5 जा 45, 45 आएगी एज 5 साल बाद दी, ठीक है। एचओ की है आप -5 करांगे की आ जाऊगी 40 years, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैनू सन दी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करके दसो की होएगी। सन दी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन दे विच दसो की होएगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। की कहंदा द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू सन एज इज 4:1। हुण ए या तो है कि सिंपल इक्वेशन बनाओ तो सॉल्व करो। दूजा मैथड, मैं फादर दी एज नू 4x अज्यूम करूंगी, सन दी एज नू आपां x अज्यूम करांगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, फादर एंड सन दी एज कितनी दी हुई है, प्रोडक्ट कितना दिता होया 196। फादर दी एज नू मैं 4x अज्यूम कर लिया, सन दी एज नू मैं x अज्यूम कर लिया 196, 4x square is equal to 196, 4 1s are 4 4s are 16, 4 9s are 36, x की वैल्यू की आ जाऊगी 7 ते x ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ सन ਦੀ ਏਜ ਨਾਲੋਂ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, प्रेजेंट एज ऑफ सन 7, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 4 7 28, प्रेजेंट एज ऑफ 28 ते 7, 5 साल ऐड करो 12, ये आ जाऊगी 33 रेशो 12। सिंपलीफाई करो, 3 1s are 3 11s are 33, 3 4s are 11:4, ऑप्शन नंबर सी पार्ट। स्टूडेंट्स क्लियर है मैं की किता, फादर दी एज नू 4x अज्यूम कर लिया, सन दी एज नू मैं x अज्यूम कर लिया, दोनों दी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 196। इस एदे विचों मैं x दी वैल्यू कड्डी, x दी वैल्यू कैलकुलेट करके ये की आ गई सन दी एज, सन दी एज जो कैलकुलेट की तो 4x फादर दी एज कैलकुलेट की, फादर दी प्रेजेंट एज, पर उन्हें पूछा की है 5 साल बाद दी, +5 रेशो बनाई मैं 5 साल बाद दी, दोनों ਨੂੰ कैंसल आउट किया 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ रेशो आ गई सिंपलीफाइड फॉर्म च, की आया अपना आंसर 11:4। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन? एग्जामिनर एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। सॉल्व करना इज अ सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग की हैगी है इक्वेशंस जनरेट करनी है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की कहंदा, 3 years ago the average age of A and B was 18 years। 3 years ago A -3, दूजे पासे की लिखांगे B -3। हुण की है एवरेज का कॉन्सैप्ट आ गया, एवरेज का पहले मैनूं फॉर्मूला दसो, कोई दस सकदा एवरेज का फॉर्मूला की हुंदा? सम अपॉन नंबर, ठीक है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੋ ਟਰਮ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 2, ਸਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਮ ਆਫ एजेस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 years ago प्रेजेंट एज मैं अज्यूम कर ली a ते एदी कर ली b, 3 साल पहला -3, 3 साल पहला -3। दसो मैं सही लिखिया, दोनों दी मैं एजेस लिख ली 3 साल पहला, सम करता ओदा। ठीक है, उस तो बाद की है डिवाइडेड बाय n, n की है नंबर, नंबर किन्ने किन्ने बंदे दिते हुए ने 2, किदे इक्वल दिती हुई एवरेज 18 दे एवरेज से। ठीक है, इथों सॉल्व करो a ते b दे विचों इक्वेशन कैलकुलेट करके दसो a ते b दे विच। ठीक है, 2 उधर चल जाऊगा, a ते b दे विच इक्वेशन आ जाऊगी। सेकंड चीज की पोजीशन विद c ज्वाइनिंग देम द प्रेजेंट एज बिकम्स, हुण की है प्रेजेंट पुछी होने, हुण कोई माइनस या प्लस नहीं करना, की कहंदा a प्लस b प्लस c, हुण n की लवांगे आपां, हुण साडे नंबर किन्ने 1 2 एंड 3, सो n की आपां लवांगे 3, किन्नी दित्ती हुई है 22, a प्लस b प्लस c किन्ना आ जाऊगा 66, 22 इंटू 3 66, ये आ गई साडी सेकंड इक्वेशन। इथों आ जाऊगी साडी फर्स्ट इक्वेशन, ते की पूछे हाउ ओल्ड इज सी, a minus 3 plus b minus 3 is equal to 18 to 36, a plus b minus 3 minus 3 minus 6 हो जाके plus 6 42, ये बन गई साडी फर्स्ट इक्वेशन। हुण a प्लस b दी वैल्यू पता सानू, a प्लस b दी वैल्यू 42 प्लस c इज इक्वल टू 66, c दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी 66 माइनस 42 4 2, आ गया साडी c दी वैल्यू 24 इयर्स। स्टूडेंट समझ आया, मेथड बहुत सिंपल है, प्लीज कंफ्यूज ना होइयो, बस जेड़ी चीज पूछी है उवें लिखो, आंसर कढो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है एवरेज दे विच। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, अगेन ये डबल एवरेज दा हैगा क्वेश्चन, एदा आंसर मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दसो की आऊगा। प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन देखो तुहाडे तो हुंदा है कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट सैक्शन दे विच मैनू अपनी प्रॉब्लम स्टेट करो। इत्थे की दित्ती हुई है 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago, ओके ध्यान रखियो -8 करना आपां टेबल दे विच, आफ्टर 8 years, चलो मैं तुहानू टेबल बना दिन्नी आ, रोहित सन, इधर मैं की लिखूंगी टाइम, -8 years ago, रेशियो कितनी दी है 4 टाइम्स, आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। टेबल बनाता, एदा डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस सेम नहीं हैगा, डिफरेंस सेम करो, ते एदा डिफरेंस क्या होगा 16 years का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 8 नहीं आऊगा 16 years आऊगा, क्योंकि -8 + 8 16 डिफरेंस हुंदा है ईयर्स विच। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस मैंने कैलकुलेट करके कमेंट सैक्शन दे विच दसो। ओके, ये सेम क्वेश्चन मैं प्रीवियसली हुणे करवा चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन डबल रेशियो का क्वेश्चन है, डबल रेशियो दे 90% चांसेस ने कि तुहानू डबल रेशियो विच ही पूछेगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 brothers, brother 1 brother 2, ठीक है, प्रेजेंट एजेस कितनी दी हुई है 1:2, प्रेजेंट एज इत्थे मैं की लिखूंगी ईयर। ठीक है, 5 years back -5, the ratio was 1:3, 1:3। ठीक है, what are their ages after 5 years, एच नवी चीज की पूछ ली, उन्हें प्रेजेंट ते 5 साल पहला दी देती ते 5 साल बाद दी पूछ ली। हुण देखो पहला स्टेप की है, डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस सेम है 0 1, डिफरेंस सेम नहीं हैगा। उस तो बाद नेक्स्ट स्टेप की है, एदा डिफरेंस देखो, एदा डिफरेंस कितना 2, एदा डिफरेंस कितना 1, सेकंड इक्वेशन नु आपां 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे ते फर्स्ट इक्वेशन नु आपां मल्टीप्लाई करांगे 2 दे नाल, की आऊगा
1s are 2, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 3 1s are 3. ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ डिफरेंस सेम है 2 1 4 3 यस डिफरेंस इज सेम रेशो विच डिफरेंस कितना है 1 रेशो विच कितना डिफरेंस है 1 ईयर्स विच कितना डिफरेंस है 5 1 दी वैल्यू 5 है प्रेजेंट एज कितनी है ब्रदर 1 दी 2 2 दी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ते 4 दी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 एक ही आ गई प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर 1 एंड प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर 2 स्टूडेंट्स एक चीज का खास ध्यान रखियो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆ ਗਈ 10 ਤੇ 20 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 15 ਤੇ 25 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ 5 3s are 15 5 5s are 25 3 ratio 5 ऑप्शन नंबर सी पार्ट ठीक है स्टूडेंट्स सेम मेथड है सेम सारा कुछ है गया बट वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाली ट्रिक्स ठीक है अगर इक्वेशन फॉर्म करोगे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਡਬਲ ਰੇਸ਼ੋ ठीक है ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਅਗੇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 year ago the ratio of Gaurav and Sachin was 6:7 4 years hence 1 year ago -1 4 year hence +4 हिंट में देता ठीक है टेबल बनाओ सॉल्व करो डिफरेंस चेक करो डिफरेंस सेम नहीं है डिफरेंस सेम करो रेशो ते ईयर्स जिन्ने ने ओदे नाल मैच करो ते देखो की कहंदा हाउ ओल्ड इज सचिन पूछा मतलब प्रेजेंट एज पूछी है ऑफ सचिन ठीक है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ आ गया बहुत इजी चैप्टर है प्लीज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਦੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੇ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਦੀ PDF ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ